Hi, good afternoon, my all students. Jule, Namaskar, Namaste, Assalamu alaikum to one and all. How are you? Hope you all are doing well and are truly fine with the blessings of Almighty Allah. May He shower His blessings on you, my beloved, beautiful, and bright students, and also may He guide you, shield, and cover you from His own celestial power and protect and save you from this COVID pandemic 19. It engulfs, you are fully aware about the present or the current situation throughout the world. It engulfs, it covers each and every country of the globe. So, hope you are enjoying your time with your family, with your parents, with your siblings at your respective homes. Today, I learn Bilal. I come up with a beautiful English NCERT CBSE class 10th special lockdown online lecture series just for you, my beloved students. Hope you will enjoy this beautiful series about NCERT CBSE class 10th English textbook. In class 10th, you all are aware about there are two textbooks. One is the main textbook, namely First Flight textbook in English for class 10th, and simultaneously we have another book, that's supplementary textbook, that's Footprints Without Feet. Today I come up with a lecture series for you guys from the main text book, that's First Flight. तो इसी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में हम पहले ही यूनिट में हम देखेंगे कि वो हमने ऑलमोस्टली कवर किया है कि ए लेटर टू गॉड, उसी का दूसरा पार्ट उसी फर्स्ट यूनिट में ही चैप्टर में ही आपको पढ़ता है। वहाँ पे 1.1 पे है ए लेटर टू गॉड एंड 1.2 पे है आपकी ये पोइम, जो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल बेस्ट एंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोइम रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, दैट्स डस्ट ऑफ स्नो। तो इसी को आज हम कवर करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले तो पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, अबाउट द आथर पढ़ेंगे कि कहाँ से ये आथर था, क्या उसने किस खास एरिया में इसकी स्पेशलाइजेशन थी और किस चीज़ के अंदर इसकी मतलब कि कमांड थी। तो वही हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हीलिंग टच, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, बॉन्डिंग एंड एक क्लोज कम्बिनेशन कॉपरेशन होता है कि इसके इस जो भी एक आथर पोइट राइटर ने प्रोड्यूस किया है लिटरेचर पूरी रीडरशिप के लिए, जो भी ग्लोब में है उनको होते हैं कि जैसे हम हैं, वी आर द रीडर्स। तो यहाँ पे भी उन लोगों के लिए इसने एक स्पेशल, लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसका क्रक्स तो देखने के लिए उस पोइम का, प्रोज का, ड्रामा का, नॉवल का, तो उससे पहले ये एक ज़रूरी हम लोगों के लिए it becomes some sort of a duty and obligation for a reader, like for a readers of the English literature. So being a English literature student, it's our right to know about the background, to know about the whereabouts of the author. So then definitely, क्योंकि इससे हम लोगों को एक एज मिलता है, बोनस मिलता है कि in order to understand the crux, the message, the central message or the central theme or moral of the poem या any other piece of literature जो भी इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे देखो आप कि पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इसका एक फुल नाम था। बॉर्न हुआ था 26 मार्च 1874 के अंदर और he died on 29 January 1963। was an American poet। ये एक अमेरिकन पोइट था, अमेरिका को बिलोंग करता थे। his work was initially published in England before it was published in America। आप देखोगे कि being an American citizen, तो वहाँ पे उनके वर्क्स को ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया था तब, उससे पहले ही उसको सेलिब्रेट किया गया था कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। एंड दैट्स वाई इनके वर्क्स को इनिशियली फर्स्टली उनको पब्लिश किया गया था कहाँ पे, इंग्लैंड में, इंस्टेड in America before it was published in America. Why? Because he was known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Colloquial speech ये होता है कि जो हम लैंग्वेज, he was fully aware about
the language, the ordinary language of the ordinary people, the ordinary language of the common people, the common language of that particular area. इसीलिए he was, that's why he was a realistic, he was known for his realistic approach towards this literature, towards this piece of. He depicts, he displays, his presents each and every thing with realistic पर्सपेक्टिव, विद इन द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लेकिन साथ साथ क्यों उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस चीज़ को साबित करने के लिए, उस चीज़ को मतलब कि सक्सेसफुल दुनिया में लाने के लिए उसको एक बेहतरीन करेक्टरिस्टिक फ्यूचर भी था। उसका एक फुल कमांड स्पेशलाइजेशन थी किस पे, अमेरिकन इस कोलोकियल स्पीच पे। मैंने, आप देखो कि मैंने नीचे इसको आराम से इस न्यू टर्म्स में भी उसको डिफाइन किया है कि इज़ द लिंग्विस्टिक, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने, इज़ द लिंग्विस्टिक यू स्टाइल, लैंग्वेज रिलेटेड है, यूज्ड फॉर casual communication. It is the most common functional style of speech, the idiom normally employed in conversation and other informal texts. Informal हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हम formal में use नहीं कर सकते हैं. It's an informal speech. डेली लैंग्वेज जो हम फ्रेंडली यूज़ करते हैं विद नियर वंस, विद फ्रेंड्स, विद फैमिलीज। तो यहाँ पे भी आप देखो कि इसका कमांड इस चीज़ पे था। दैट्स वाई ही वाज सेलिब्रेटेड इन इनिशियली इन कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर, एंड स्टड इन अमेरिका। Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो अब देखो कि ये अक्सर हम इसको देखने, इसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे कि इसके पोइम्स का इसने ऑलमोस्टली 100 प्लस, सॉरी 300 कुछ पोइम्स उसने लिखे हैं फ्रॉस्ट ने अपने एंटायर कैरियर के अंदर। उन पोइम्स को फिर क्लासिफाई किया गया है, कैटेगोराइज किया गया है कि किन किन वॉल्यूम्स के अंदर। जैसे इस पोइम को भी हमने इसको आगे देखेंगे कि इसने इसको किस पोइम में, सॉरी किस वॉल्यूम में डाला है कि देन ही पब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर पोइम विद द कलेक्शन ऑफ पोइम्स। लेकिन इन किस वॉल्यूम के अंदर, तो वो हम आगे हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में। बट फ्रिक्वेंटली फ्रॉस्ट रूट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ। जो भी अगर आप देखोगे टू लार्ज एक्सटेंट, अगर हम देखेंगे इसका लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर हम देखेंगे, तो वो हम, इसने सेटिंग हमेशा लिया है कि रूरल लाइफ से, रूरल लाइफ स्पेशली ऑफ न्यू इंग्लैंड का इन द अर्लीस्ट 20th सेंचुरी, यूजिंग देम ओनली, ही यूटिलाइज देम, he makes full use of them only to examine complex, very obscure social and philosophical themes. तो जो लोग, जो बाकी अदर वहाँ पे पोइट्स थे, ऑथर्स थे, उन्होंने उस चीज़ को डेल्ट नहीं किया अच्छे से, एंड दैट्स वाई ही यूटिलाइजेस, ही मेक्स हिज सेटिंग ऑफ हिज एंटायर, उस जो भी उसने लिखा है वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रूज पोइम्स, तो उनका सेटिंग उसने डिलिबरेटली लिया है न्यू इंग्लैंड के भी एक स्पेशल रूरल लाइफ को इन द अर्लीस्ट 20th सेंचुरी, ओनली in order to using them to examine very obscure and complex difficult, जिसमें वो ambiguity थी, तो उनको social and philosophical themes. And next we come to see, we will see, Frost was honored frequently during his, अब देखो वहाँ पे he was the only poet, frequently उसको नवाजा गया था, he was conferred frequently, he was honored frequently with major and minor उन अवार्ड से, जो भी उनको मिलता था मेडल से। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, एंड इज़ द ओनली, यहाँ पे आप देखो कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डिलिबरेटली इसको हाईलाइट किया, इज़ द ओनली पोइट हु रिसीव 4 पुलित्ज़र प्राइजेस फॉर पोइट्री। तो ये हम नीचे आप न्यू टर्म्स में इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि, तो नीचे आप देख सकते हैं पुलित्ज़र प्राइज इज द ओनली, इज वन ऑफ द 7th अमेरिकन पुलित्ज़र प्राइज दैट आर एनुअली अवार्डेड फॉर लेटर्स। ये एनुअली हम देते हैं किस फील्ड के अंदर, अवार्डेड फॉर लेटर्स, ड्रामा,
म्यूजिक, लिटरेचर, पोइट। तो यहाँ पे भी आप देखिए इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड सिंस। तो ये कब से ये रूटीन चलती आई है? 1922 फॉर अ डिस्टिंग्विश्ड वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वर्सेस बाय एन अमेरिकन ऑथर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्रेसीडिंग कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे भी एनुअली उसको यहाँ पे कॉन्फर किया है इसी प्राइज से, जो वन ऑफ द सेवन्थ प्राइज हाइस्ट प्राइज है वहाँ पे। लेकिन इसको किस चीज़ के लिए मिला, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इसने भी 4 टाइम इसने इस चीज़ को, ओनली पॉइंट हु रिसीव दिस पर्टिकुलर एंड स्पेशल प्राइज 4 टाइम्स, किसी को नहीं मिला आज तक। लेकिन किस चीज़ के लिए? ओनली फॉर पोइट्री। दैट्स वाई ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड बेस्ट पोएम ऑफ द अमेरिका. He became one of the America's rare public literary figures, almost an artistic in institution. On the basis of this, one can call, मतलब कि on the basis of this special जो उसका वो कमांड थी किस चीज़ पे, इस पोइट्री पे, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड, ही बिकम अल्टीमेटली पब्लिक लिटरेरी फिगर्स, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक। ही वॉज अवार्डेड, एंड साथ साथ इन 4 अवार्ड्स के साथ जो ही एक टाइम में लिया था कि इसने, तो उनके साथ साथ उनके कांग्रेसनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोइटिक वर्क्स। यहाँ पे भी उनको 1960 में कॉन्फर किया गया था एक कांग्रेसनल गोल्ड मेडल है 1960 के अंदर। On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. इस चीज़ को भी मैंने नीचे लिखा है, सॉरी, इस न्यू टर्म्स के अंदर इस चीज़ को हमने, इज द पोइट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो नीचे आप, are conferring an institution typically expected to compose poems for special events and occasions. तो ये यहाँ पे एक लाइसेंस मिला है, जैसे एक ड्राइवर को लाइसेंस मिलती है कि फिर वो वहाँ पे गाड़ी कोई चलाता है, वहाँ पे बीच में उसको रोका जाता है कि टू शो योर जो भी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, व्हीकल के या अपने उससे, तो उसके पास एक लाइसेंस, जब उसके पास लाइसेंस अथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले उसको आराम से वापस छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब कि इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया है कि एक अथॉरिटी स्लिप उनको प्रोवाइड की है कि हमारे पास अब कोई अधिकारी नहीं है, इसको हम रोकेंगे, यहाँ पे इसको स्टैंड पे रखेंगे इस रोड पे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई भी कुछ खास होता था गवर्नमेंट की ओर से, तो उसको एक परमिशन मिला था ऑलरेडी, बिकॉज ही वॉज, फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड द पोइट ल्यूरेट ऑफ द वर्माउंट। तो इसी के साथ साथ ये जब भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती थी, फंक्शन होती थी, या कोई स्पेशल इवेंट्स एंड ओकेजन्स होता था, तो उसको वो खास कर वहाँ पे उस टाइम बुलाते थे इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिज दिस जो भी उसके स्पेशलाइजेशन होते हैं ऑडियंस के सामने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाय 1920s फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट एंड अमेरिका। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वाई ही वाज सेलिब्रेटेड पोइट इन अमेरिका। ये इसी के साथ इसीलिए था क्योंकि उसकी एक स्पेशलाइजेशन थी, एक बेहतरीन कारनामा उसने दिखाया थी कि ही वॉज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक अप्रोच। ही डिलिबरेटली यूजेस दिस रूरल लाइफ in New England की setting only to show the realistic perspectives of the common masses or the ordinary people in his celebrated poems, जो उनमें भी एक बेहतरीन पोएम है जिसको हम अभी डील कर रहे हैं, दैट्स डस्ट ऑफ स्नो। अब देखो यहाँ पे बाय 1920, यहाँ पे अब देखो कि इस एरिया के अंदर इसके खास खास कुछ पोएम्स हैं। अब हम वापस आएंगे सीधे, अब द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वाज पब्लिश्ड इन न्यू शायर इन 1923। मैंने आपको पहले ही बोला है कि लास्ट टाइम भी 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक, जो विलियम ब्लेक रोमांटिक एरा को, रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करता था। वहाँ पे हमने उसके 2 वॉल्यूम्स देखे हैं, उसने भी बहुत सारी पोएम्स लिखे हैं। उन बहुत सारी पोएम्स को उसने क्लासीफाई किए हैं 2 एरियाज़ में। एक दो वो जब एरियाज़ में उन्हें, फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 पोएम्स लिखे हैं, 100 में से 50 को उठाया या 55 को इसमें, या 45 या 50 को रखा है दूसरे में, तो उन दोनों एक ग्रुप बनाया है, उन दोनों ग्रुप्स के अंदर जो वहाँ पे एक वॉल्यूम्स उसने क्रिएट किए, वन इज़ द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सेकंड वन इज़ द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो एक बेहतरीन 2 ब्यूटीफुल ब्रिलियंट मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस 2 वॉल्यूम्स है विलियम ब्लेक के, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी देखिए उस वॉल्यूम के अंदर ही उसने उस द स्कूल बॉय को वहाँ पे
एक बहुत सारे मतलब कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स के साथ पब्लिश किया है। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट पोएम, उसको भी एक ग्रुप में डाला है। उस ग्रुप किस ग्रुप में डाला था, उस ग्रुप का नाम था न्यू हैम्पशायर। ये एक वॉल्यूम ऑफ पोएम्स था, एक कलेक्शन थी, इसी के अंदर उसको पब्लिश किया गया था इन 19। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरी याद रखना है कि क्योंकि पब्लिशिंग डेट बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप आगे जाओगे तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये डस्ट ऑफ स्नो पब्लिशिंग डेट कब था, क्या था, ठीक है ना। सो दिस collective एंड दिस इज द कलेक्शन विच गेव हिम द, जो हमने ऊपर देखा है कि 4 टाइम ओनली poet टू रिसीव द फोर टाइम द सेम अवार्ड, दैट इज द प्लूटोजर प्राइज। तो यही एक कलेक्शन थी जिसने उसको दिलाया था कौन सा, एक बेहतरीन दिस Pulitzer Prize. This little poem has remained popular because, अब देखो यहाँ पे इसकी अहमियत हम देखेंगे इस पोइम की, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे इसके मेन कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट पे। दिस लिटिल पोइम this little poem has remained popular because it juxtaposes two fundamentals: human complexity and animal simplicity in such a compact and simple form. And this is the essence of this particular, but this one of the shortest poem written by this रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसकी अब अगर हम अहमियत देखेंगे कि यहाँ पे क्यों ये इट जक्सटपोज, इट मिक्सेस, इट ब्लेंड्स टू फंडामेंटल ट्रूथ्स, दैट्स ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी एंड एनिमल सिंपलिसिटी। ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी ये हम देखेंगे आगे कि क्यों ह्यूमन, अक्सर हम इस चीज़ की, इस एम्बिग्यूटी के पीछे या इस एम्बिग्यूटी फील्ड के अंदर हम उसको डालते हैं। तो साथ साथ यहाँ पे एनिमल सिंपलिसिटी, तो एनिमल ने कैसा कारनामा यहाँ पे दिखाया है कि हाउ ही कम एंड चेंजेस द एंटायर स्टेट ऑफ माइंड। तो ये हम नीचे देखेंगे आराम से, इन सच अ कम्पैक्ट एंड सिम्बॉलिक फॉर्म। तो कैसे उसने इसको दिखाया, तो ये हम नीचे ऑलरेडी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी अभी। The other outstanding feature of dust of snow is that it is so accessible. Accessible means it's available. तो ये एक आउटस्टैंडिंग फ्यूचर है इस चीज़ का। लाइक मैनी ऑफ फ्रॉस्टर्स मोस्ट पॉपुलर पोएम्स, द रीडर्स being taken under the same tree to experience the crow and the snow. This is again one of the characteristic feature of the poem of किसका, इस रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का। द रीडर बीइंग टेकन अंडर दैट ट्री टू एक्सपीरियंस। तो ऐसे आप देखो कि कैसे एक रीडर को लिया जाता है यहाँ से बिल्कुल उस जगह पे, कि ऐसे इसने मैनिपुलेट किया है, यहाँ पे मॉडिफाई किया है, अल्टर किया है, डिलिबरेटली यूजेस द सेटिंग्स ऑफ न्यू इंग्लैंड only to show the realistic perspective, and that's why he was celebrated in America and in England too, just for his realistic approach towards the humanity, towards this literature, towards this English literature. He contributes, आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि he contributes realism towards the English literature. तो यही एक इसकी खासियत थी कि ऐसे इंसान उसको जब पढ़ने के बाद इंसान यही करता है कोशिश, मैंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं खाली, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, इस पोएम को, हर एक एक वर्ड को पढ़ा है कि, एंड अल्टीमेटली आई मेक रीडर मिक्स अप हिज माइंड एंड ही कम टू द कंक्लूजन दैट मैंने इस चीज़ को खाली पढ़ा नहीं है, बट एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल exercise and activity under that same tree to experience the crow and snow. तो ये हम देखेंगे नीचे। तो ये कुछ न्यू टर्म्स हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है ऊपर भी, तो इसको अगर आप जानने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ, अब हम इस चीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे introduction is the 8 lines short poem Dust of Snow, written by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost is about poet's optimism and his message to the readers about finding something positive in the negative things. This is one of the brilliant करेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ दिस पोइम। मैंने हमेशा बार बार आपको क्लासेस में भी बोला है कि लास्ट ईयर भी जब हम डील करते थे इसका नहीं या किसी और, वाल्ट विटमैन, वन ऑफ द ब्रिलियंट फेस ऑफ अमेरिकन
जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वाल्ट विटमैन की पोइम भी आपको इस साल में भी है 10th के अंदर, एक बेहतरीन पोइम है, उस पोइम का नाम है एनिमल्स। तो वो हम देखेंगे कि ही वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री। ही वॉज कंसिडर्ड इजरा पाउंड, एक और क्रिटिक है, आथर है, राइटर है, वो लिखती हैं वाल्ट विटमैन इज अमेरिका। देखो कैसे मेटाफर उसने यूज़ किया है कि वो खुद लिखती हैं, वो बोलती हैं कि इफ़ यू वांट टू नो अमेरिका, तो आपको ज़रूरी जानना है कि पोइट्री रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उसमें एक क्या खासियत थी, वो इंसान को उस जगह लेते थे कि इंसान यही सोचता कि मैंने इस चीज़ को खाली पढ़ा नहीं, बल्कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं खुद जाके वहाँ उस सिचुएशन पे गया हूँ, तो मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे ये एक्सपीरियंस एक्टिविटी, जिस चीज़ को उसने कंटेंट को यहाँ पे उसने मेंशन किया है, पोर्ट्रे किया है, डिपिक्ट किया है इस पूरी कहानी के अंदर, मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस पोइट ने नहीं की, ये आथर ने नहीं की, किसी और इंसान के उस इंसान ने नहीं की जिस इंसान के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे इस पोइम के अंदर। नहीं, ऐसा इंसान को लगता है कि जैसे मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, कि उस चीज़ को मैंने कॉन्फ्रंट किया है फेस टू फेस, मतलब कि उसके साथ वो मतलब कि एक्सपीरियंस किए हैं, देन मतलब कि मैंने यहाँ पे उस चीज़ को शो किया है। अब देखो, इट्स शॉर्ट पोइम है, 8 लाइन्स अबाउट, दिस इज द इंट्रोडक्शन, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हियर। Students, this is just a 8 lines short poem, Dust of Snow, written by Robert Frost, is about the poet's optimism. Optimism, there is a brilliant concept. The two terms, one is the optimism, and the second is pessimism. ऑप्टिमिज्म होता है कि दुनिया में जो भी है, तो इसका कोई ना कोई वैल्यू है। हमेशा मैंने बोला है कि इवन कि अगर आपको लगता है कि जो इंसान को लगता है कि अपने उस ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी के, ये भी ऊपर लिखा है, हमने अभी देखा है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक बिटवीन एक जिक्स्ट इट मिक्सेस टू ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी एंड एनिमल सिंपलिसिटी। एनिमल को पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना काम, लेकिन इस इंसान को भी पता है, बट डिलिबरेटली he misuses, he takes the advantage of innocent people, he takes the advantage of the innocence of animals, only to modify, to alter his things accordingly। जो भी उसको लगता है कि मेरे लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मैन becomes a materialistic, he becomes a selfish, he is only again and again thinking, pondering about his own, about his or her own well-being and welfare in a head। लेकिन कोई अगर अगर आप देख, वो बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको इस दुनिया में जो दूसरे इंसान के बारे में भी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं। तो यहाँ पे भी एक इंसान अपने लिए क्या, वो कहाँ फिर सोचेगा एक एनिमल के लिए। यहाँ पे इसीलिए उसने एक टू फंडामेंटल्स को मिक्स किया है, ऑन द वन हैंड ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी, एंड ऑन द अदर हैंड he mixes deliberately in order to show this beautiful comparison between the human complexity and this animal simplicity। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि ऑप्टिमिज्म जस्ट फॉर, दुनिया में जो भी है इसकी अपनी अपनी एक अहमियत है। डस्ट हैं, जो हम डस्टबिन के अंदर वो जो भी हम उसके अंदर वो गार्बेज डालते हैं, उसकी भी एक अपनी अहमियत है अपनी जगह पे, वो भी किसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन पेसिमिज्म का नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है पेसिमिज्म का, तो उनका यही होता है कि जो भी है दुनिया में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यूज़ ही नहीं है। उनको लगता है कि दुनिया बस हमारे लिए ही है। एंड हिज मैसेज टू द रीडर्स अबाउट फाइंडिंग समथिंग पॉजिटिव इन द नेगेटिव थिंग्स एज वेल। तो यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द सेंट्रल मैसेज, दिस इज द सेंट्रल क्रक्स, एंड दिस इज द सेंट्रल आइडिया, दिस अ सेंट्रल एरंड फॉर द रीडर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो भी उसको पढ़ना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ इज मैसेज टू द रीडर्स अबाउट फाइंडिंग समथिंग पॉजिटिव इन द नेगेटिव। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, जिक्र किया आप लोगों के साथ, इंसान इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि उसको अगर लगता है सोसाइटी में कोई भी चीज़ है जो पैसिमिस्टिक एक इंसान के तौर पे लगता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ के अंदर खाली नेगेटिविटी ही है, लेकिन इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसको वही नेगेटिविटी यूज़ करनी है, ओनली इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्सेप्ट, गेट द अप्रोच ऑफ द पॉजिटिव इन ए हेड। तो यहाँ पे भी एक सेंट्रल मैसेज अगर हम देखेंगे, पॉजिटिव मैसेज हम देखेंगे यहाँ पे, ओनली इट कंपेल्स द रीडर्स, इट टीच द रीडर्स
कहीं ना कहीं कि इट लर्न्स द रीडर्स। अगर हम देखेंगे इसका आउटकम क्या है, वो आउटकम यही है कि इट डिलिबरेटली पुश और कंपेल्स द रीडर to find out the positive things even in negative things as well। नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स में आप कहीं ना कहीं उनको आप यूज़ करो, उन नेगेटिविटी को, जो एक पेसिमिस्टिक इंसान को लगता है कि ये दुनिया में है किसी काम के लिए नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को आप, उसी नेगेटिव चीज़ को आप यूटिलाइज करो only in order to find the other positive। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो आपको शायद काम आएगा, आपके लोगों को काम आएगा for their well-being। The poem has been divided into two stanzas having 4 lines each। इस poem को divide किए, यहाँ पे अगर हम structure देखेंगे, structure of the poem is it's just of 8 lines। तो उन 8 lines को यहाँ पे 2 stanzas में divide किया है, just of 4 lines each। The rhyme scheme of the poem is A B A B। तो ये आपको पता ही है कि मैंने बार बार जिक्र किया राइम स्कीम क्या होता है कि, ठीक है ना, लाइक है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree। क्रो, स्नो। आप देखो कि द वे क्रो, क्रो खत्म हुआ, साउंड कौन सा मिला, द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो, स्नो। तो ये है ए। तो इसके साथ हम शुक डाउन ऑन मी, मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी एंड ट्री, ये अगेन हो गया कि ए। जो फर्स्ट 2 लाइन्स होते हैं ये होते हैं ए। जो सेकंड 2 लाइन्स होते हैं तो ये होते हैं ए, सॉरी बी बी। तो यहाँ पे भी आगे देखेंगे कि ए बी कैसा है। देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मूड फ्रॉम होपलेसनेस एंड बर्डम टू ब्लस एंड होप। आप देखो यहाँ पे लास्ट में एक, जब हम एंटर होते हैं इस चीज़ के अंदर, वहाँ पे एक रीडर को यही पता चलता है कि देयर इज ओनली वन थिंग, दैट्स नेगेटिविटी, दैट इज द पेसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट। बट एट द एंड, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एंटर जब हम होते हैं इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ को पढ़ने के अंदर, जब हम इस चीज़ के अंदर अपने आप को डालते हैं कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड इन फर्स्ट सेंटेंस ओनली द होपलेसनेस, वी फाइंड डेस्परेट, वी आर टोटली बोर्डम, वी फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड। बट एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड द ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेप्ट, दैट्स होप अगेन, जो हम लास्ट में इसके एक आउटकम भी मिलेगा। नाउ कम टू द मेन टेक्स्ट। यही यहाँ पे अगर देखेंगे कि पोइम यहाँ पे ही शुरू होती है कि पोइम जो रिटन यहाँ पे विलियम सॉरी दिस रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जो यहाँ पे येलो में मैंने इसको ये किया है, दिस इज द एग्जैक्ट टेक्स्ट। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फिर से उसको रिपीट करेंगे, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree। Shook, it's shake। Hemlock tree, अगर आप देखेंगे कि till now people consider this tree एक poisonous tree है। This tree is again a symbol of negativity। इससे पहले भी मैंने बोला कि when we start to enter into this concept and context of the poem initially, we definitely find one thing, that's the negativity, that's the pessimistic concept, that's the pessimistic approach। but at the end of the day, at the end of the poem, तो वहाँ पे एक होप मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनिशियली देर इज होपलेस, कोई होप ही नहीं है, इंसान को लगता है कि आई लॉस ईच एंड एवरीथिंग नाउ। नीचे आ जाए इस चीज़ के अंदर, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट वन डे he was on the way, which means that he was outside roaming around in the open। open means open field, फील्ड होता है ये, अर्थ पे वो घूम रहा था यहाँ से लेके सुबह से शाम तक। एज देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, एज देयर इज नो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, इसने कब से अपने वो शुरुआत की है चलने की, कब से ये रोम कर रहा था, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे उसने डिलिबरेटली मेंशन नहीं किया है। इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था उसने कब से, वो कब से घर से निकला, वो घर से ही निकला या कहीं और जगह था वहाँ से निकला कि, बट हमें खाली यहाँ पे एक चीज़ है कि ही वॉज रूमिंग, मतलब कि सुबह से, कब से, कब कहाँ से, लेकिन अभी तक वो रूम कर रहा था। अभी तक उसने क्या फील किया, एज सडनली इन अ विंटर सीजन, डे था विंटर, सेटिंग थी रूरल लाइफ, तो उसी के साथ साथ विंटर टाइम था, विंटर सीजन था। सडनली इन द विंटर ए क्रूशुक ऑन हिम द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखो
अगर हम एक डे की एक मिसाल लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ही वॉज रूमिंग सिंस मॉर्निंग, ही वॉज रूमिंग हेयर एंड देयर एंड अल्टीमेटली ही फील्स एग्जॉस्टेड, ही इज टोटली टायर्ड, ही इज फीलिंग हंग्री। तो इसी के साथ साथ वहाँ पे एक उस प्लान के अंदर, उस फील्ड के अंदर, उस ओपन के अंदर वहाँ पे एक ट्री देखा उसने, उस ट्री का नाम था हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री, इट इटसेल्फ स्टैंड्स, इट गिव्स द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। क्यों ये नेगेटिव, हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे भी। तो लोग उसको बोलते हैं कि होते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर कुछ मिथ्स होते हैं जिन पे बिलीव हम करते हैं, कभी प्रूव के बगैर ही लोग बोलते हैं कि ओए बाबा यहाँ से एक लाइन है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है आपको। क्यों? आगे वहाँ पे इस लाइन, अगर आपने डिलिबरेटली या चांसली या मतलब कि ऐसी इस लाइन को क्रॉस किया, उस दीवार को क्रॉस किया, उस किसी भी उस पीली लाइन को क्रॉस किया, वहाँ पे एक खतरा है। तो हम ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट बिलीव विदाउट प्रूविंग दैट दैट्स अ मिथ। तो यहाँ पे भी एक सिंबल आप देखोगे कि इसके पीछे कौन सा राज छुपा है, क्या छुपा है, बट लोगों ने टिल नाउ पीपल बिलीव that this hemlock tree stands for negativity, it stands for pessimistic approach, and that's why it stands for a poisonous tree with small white flowers होते हैं इसके अंदर। अब देखो, सडनली इन द विंटर एक्रो शुक ऑन। तो इसी के साथ साथ ये कहाँ पे आता है, सुबह से ये वाह करते रूम रूम करते करते कि एक वहाँ पे उस प्लेन के अंदर ही एक देख रहे हैं कि विंटर टाइम पीक भी होता है, और जो भी ट्री टॉप्स होते हैं दैट्स ऑलमोस्ट कवर्ड विद द थिन शीट ऑफ दिस, किसका, इस स्नो से। पूरा वहाँ पे प्लान भी साथ साथ ट्रीज पे भी ऊपर कवर होता है कि किसका, इस स्नो का। तो इसी के साथ साथ ये बहुत ही थक गया, टायर्ड हुआ उसने, ही वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड बोर्डम। तो अल्टीमेटली ही स्टार्ट्स रेस्ट, किसके अंदर, ऊपर से स्नो भी था। तो तो ये सीधे बैठ गया कहाँ पे, इसी ट्री के नीचे। उस ट्री का नाम था क्या, हेमलॉक ट्री। सडनली इन द विंटर सीजन a crow shook on him the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पे आप देखो दो थिंग्स, यहाँ पे आप नोट करो, नोट डाउन करो। हमें ये नहीं पता है कि क्रू वहाँ पे ही था ऑलरेडी, उस ट्री के ऊपर, उस ट्री के ब्रांच, हेमलॉक ट्री के ब्रांच के बैठे ऊपर था वो ऑलरेडी, या उसी टाइम आया था वो, या उसके बाद आया था जब आथर नीचे बैठ गया उसको। इस चीज़, अगेन एज देयर इज नो स्पेसिफिक मतलब कि एक्सप्लेनेशन, इसकी कोई मतलब कि है ही नहीं, वहाँ पे कोई रेफरेंस ही नहीं दी आथर ने। वहाँ पे क्रू वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, या उसके बाद आया वो, या इसी दौरान आया था। लेकिन अल्टीमेटली जब नीचे आथर बैठा, उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब नीचे उसको बैठा, कहाँ पे, उस ट्री के नीचे, अल्टीमेटली a crow shook on him the dust of snow from a hemlock tree। डस्ट हियर, ये वो डस्ट नहीं है जो हम अक्सर देखने को मिलता है यहाँ पे ग्राउंड पे, कहीं ये कहीं फील्ड में नहीं। यहाँ पे डस्ट, ये एक अगेन, डस्ट अगेन इटसेल्फ इट्स इज एक सिंबल है किस चीज़ का, वो हम देखेंगे नीचे। ये भी एक सिंबल है किस चीज़ का, रिमाइंड्स वन ऑफ द नथिंगनेस। ये भी एक सिंबल है इस इल ओमेन का, बैड ओमेन का, जो लोगों ने कंसिडर किया है कि डस्ट किस थी। तो इसकी अहमियत भी हम, एसेंस भी हम नीचे देखेंगे। तो इसी के साथ साथ जब आथर नीचे बैठ गए इसी हेमलॉक ट्री की, इसी के साथ साथ ही वॉज फीलिंग, मतलब कि बहुत टायर्ड था वो, बोर्डम था वो, डेस्परेट था वो, होपलेस था वो। ही वॉज लेमेंटिंग द लॉस ऑफ द वेस्ट ऑफ द हाफ डे। जो भी उसने सुबह से अभी तक डे स्पेंड किया, आते आते रोम करते करते, उसको लगता था कि मैंने पूरा टाइम सुबह से अभी तक बर्बाद किया है, मेरे हाथ में कुछ आया ही नहीं। तो इसी के साथ साथ सोचा क्यों ना मैं, अब चलो जो होना था तो वो हुआ मेरे साथ, क्यों ना मैं साथ साथ अपना यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले लूँ इस हेमलॉक ट्री। जब वो नीचे गिर गया तो इसी के साथ साथ डस्ट ऑफ स्नो फ्लेक्स पड़ गए ऊपर इसके काम पे। अगेन ये वहाँ पे एज देयर इज नो स्पेसिफिक मत इंफॉर्मेशन रेफरेंस, तो स्नो उसके हेड पे पड़ गया या शोल्डर पे पड़ गया, लेकिन जो पड़ने से उसकी एसेंस हम निकालेंगे तो वही यहाँ पे एक हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वही हमारा। Suddenly in the winter, a crow shook on him the dust of snow from a hemlock tree। Here we have three important things। अब देखो इस चीज के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा। One is here,
Here we have three important things which have a significant role in society. Three important things मैंने अभी भी आपके साथ जिक्र किए हैं about myth, MYTH, myth के बारे में, जो लोगों ने विदाउट प्रूव करने के बगैर ही उन चीज़ों पे उन्होंने विश्वास किया है. यहाँ पे भी अगर देखेंगे कि here we have three important things which have a significant role to play in society. First, there is a crow which is black and often considered as a symbol of death, doom and ill omen. यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, इन चार लाइंस के अंदर, इन ब्यूटीफुल चार लाइंस के अंदर, इनके अंदर देखेंगे क्रो भी हमें मिला है, उस हेमलॉक ट्री भी मिला और डस्ट भी मिला. तीनों के तीनों बिल्कुल सिंबल्स हैं किसके? बैड ओमेन, इल्स के, लाइक डूम, डेथ एंड. तो यहाँ क्रो विच इज़ ब्लैक. अगर आप जनरल भी हम देखेंगे, जब किसी की डेथ होती है, वी स्टार्ट टू लेमेंट द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लाउड एंड नियर एंड डियर वंस. तो उस चीज़ की कई सारे कम्युनिटी दुनिया में हैं जो इस डेथ को, डूम को, इस इल ओमन को, इस लेमेंटेशन को, इस इल एज को पोर्ट्रे करते हैं, शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं लोग. कभी वो रबर बैंड्स लगाते हैं, लेकिन उस रबर बैंड का रिस्ट पे लगाते हैं रबर बैंड्स, क्योंकि उनका मातम होता है. उस मातम को दिखाने के लिए कभी हम 2 मिनट साइलेंस बैठते हैं. क्यों? किसी की डेथ हुई है, 2 मिनट साइलेंस, शायद क्योंकि उनके फैमिली के साथ हम शरीक हो जाएंगे, क्योंकि आप इस गम में मुब्तला हैं. लेकिन हम सोसाइटी, हम नेबर्स, हम नियर एंड डियर वंस, हम रिलेटिव्स, आप लोगों के साथ हैं, एंड हम भी टेक पार्ट करते हैं उस 2 मिनट साइलेंस के लिए. वो क्यों साइलेंस करते हैं? ओनली वी शूड टू हाउ टू लेमेंट द डेथ. ऑन द अदर हैंड सोसाइटी के ही कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ पीपल हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो रबर बैंड्स लगाते हैं रिस्ट पे ब्लैक कलर के, अगेन ऑनली टू शो द सिंबल ऑफ डेथ, डूम, इल ओमेन. ठीक है ना? या कभी कभार हम गाड़ियों पे वो जुलूस निकालते हैं. जैसे आपने देखा है, शिया एक कम्युनिटी है मुस्लिम, इस इस्लाम के अंदर, मुस्लिम के अंदर, वो भी जब वो आपने उस रिलीजियस उनका ये होता है एक, तो वो वहाँ पे डेथ को कैसे उसको मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं. जो भी उनका कारोबार होता है, दुकान होते हैं, शॉप्स होते हैं, घर होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं, जो भी उनका कुछ होता है, कि वो उस चीज़ को कैसे वो वहाँ पे वो फ्लैग्स लगाते हैं किसके? उस ब्लैक कलर की. यहाँ पे भी अगर देखो कि हमें खाली कलर देखना है. क्रू, क्यों उसने डिलिबरेटली इस क्रू के लिए, क्या वो नहीं कोई बर्ड और भी कोई बर्ड नहीं ले सकता है? हेमिंग बर्ड या कोई नाइटिंगेल, कोई भी बर्ड नहीं, लेकिन उन बर्ड्स की कोई कहीं ना कहीं एक अहमियत है, एक पॉजिटिव अप्रोच है. यहाँ पे उसने डिलिबरेटली क्रू को मेंशन इसलिए किया है कि क्यों क्रू इटसेल्फ is often considered as the symbol of death, doom, and ill omen. Also, the crow shook snow on the point and not through. तो यहाँ पे आप देखो, shook snow on the point and not through. तो यहाँ पे ये भी नहीं पता है कि क्रो ने डेलिबरेटली उसके ऊपर वो स्नो को ऊपर डाला है, फेल डाउन किया है, या वो शुक डाउन, या अपने आप को वो कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था उस ब्रांच के ऊपर, जिस ब्रांच के, जो ब्रांच एक ब्रांच था हेमलॉक ट्री का, जिस हेमलॉक ट्री के ब्रांच पे अपने आप को वो बैलेंस रखना चाहता था. तो ये हमें यहाँ पे भी पता नहीं है. Thus, it's obvious that the crow was shivering with the chilly cold, again a symbol of doom. तो लेकिन यहाँ पे भी अगर देखूंगा, वो अपने आप को शायद बैलेंस करने की कोशिश ही कर रहा था. क्यों? That's obvious. The fact is that obvious that the crow was shivering with the chilly cold. crow खुद भी इस कोल्ड की वजह से बहुत ही शिवर कर रहा था, शिवरिंग होती थी. दैट शिवरिंग एंड द कोल्ड, चिली कोल्ड, इज अगेन द सिंबल ऑफ डूम. तो यहाँ पे अगर देखेंगे, क्रो को हमने पढ़ा है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्रू, जो भी यहाँ पे हर एक एक चीज़ यहाँ पे एक बाइंड है, एक क्लोज कॉम्बिनेशन है, कॉपरेशन है, कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग है किस क्रो के साथ. दैट ऑलवेज गिव्स हियर टिल नाउ द सिंबल ऑफ ill omen, bad omen, death, doom. तो यहाँ पे next we have the dust of snow. The word dust reminds one of the nothingness. अगर इस डस्ट की हिस्ट्री को हम पीछे से देखेंगे, सोसाइटी में इसने अभी तक कौन सा रोल प्रोवाइड किया है, कौन सा रोल प्ले किया है? अगेन दिस डस्ट gives the significance of negativity, gives the significance of nothingness. In Islamic
एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी वी हैव ऑफन रीड। तो अगर हम देखेंगे क्रिश्चियन और साथ साथ इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर वी हैव ऑफन, हमने बहुत टाइम से पढ़ा होगा ये, डस्ट दाओ आर एंड टू डस्ट दाओ विल रिटर्न, सो डस्ट अगेन बिकम्स अनदर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक इसकी लाइन है, वहाँ पे को साइड यहाँ पे कोट किया है एक लाइन को। सो अल्टीमेटली डस्ट अगेन becomes ill omen and indicates bad luck or doom or something terrible। तो यहाँ पे भी दो चीज़ हमें मिलेंगे, फर्स्ट द कलर क्रू का वो ब्लैक, सेकंड डस्ट, डस्ट अगेन गिव्स the it indicates again bad luck, ill omen, doom, something terrible, and finally we have a hemlock tree. Hemlock is a poisonous tree which was once used by Socrates to commit suicide. Thus hemlock tree is also the symbol of bad luck and doom। अब देखो इसकी भी अहमियत, क्यों उसको लोग मानते हैं सोसाइटी के अंदर ये हेमलॉक ट्री एक अच्छा ट्री नहीं है, ये एक बैड लक ट्री है, इल ओमेन ट्री है। क्यों ये हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एज ए पॉइजनस हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री यूज्ड बाय सॉक्रेट्स। इसको सॉक्रेट्स ने एक दिन यूज किया था टू कमिट सुसाइड। दस hemlock tree is considered a bad symbol of, sorry, it's also, thus hemlock tree is also the symbol of bad luck or doom। तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे अहमियत कैसे उसने प्रोवाइड की, किसने, Robert Leifer। The poet here cleverly uses all these things to show that his day was quite bad and waste। तो इन चीज़ों को उसने क्लेवरली यूटिलाइज किए हैं, यूज़ किए हैं ओनली टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ हिज माइंड। क्योंकि सुबह से अभी तक जो भी उसने टाइम, आफ्टरनून तक टाइम गुजारा है, वो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। किस चीज़ के, उसको पता ही नहीं, उसका वो मिला ही नहीं वो रास्ता जिस रास्ते की उसको तलाश थी, जो वो सुबह से करना चाहता, जो उसने एक प्री प्लान किया था, मुझे इस दिन सुबह से क्या शुरुआत करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक गया रास्ते से। तो टिल नाउ, अब नाउ ही इज लेमेंटिंग। वाई ही इज लेमेंटिंग? बिकॉज ही लास्ट द हाफ डे टिल नाउ, एंड दैट्स वाई। तो यहाँ पे क्लेवरली the Robert Frost makes full use of all these things only to show the realistic perspective of that particular day, and that's of that particular day, and especially particularly about the mindset of that author, about that particular man who lost the day, who lost the half day till now. He was stuck am, among ample of ill omens which would have ruined his remaining day as well। अब देखो यहाँ पे, अगर हम लोगों के साथ भी ये कहीं ना कहीं होगा तो हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे जो होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि सुबह से जो भी हुआ है अभी तक मेरे साथ वो कुछ ठीक नहीं हुआ है। उसने मेरा टाइम खाया है, बर्बाद किया है सुबह से लेके अभी तक। लेकिन अब मैं कैसे यकीन करूँगा कि मेरा आगे भी अच्छा कुछ अच्छे कुछ आगे मुझे अच्छे देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है। तो एक्सपेक्ट हम भी करते हैं, जब हमारा हाफ डे ख़राब होगा तो हम आगे यही कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा मूड अब ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा सुबह से बिल्कुल अभी तक टाइम बर्बाद हुआ, ज़ाया हुआ है इसने मेरे से। दैट्स वाई आई एम लेमेंटिंग दिस लॉस ऑफ माई डे, हाफ डे। तो यहाँ पे ही वाज स्टक अमंग एम्पल। क्यों? एक इंसान, वो आथर वहाँ पे इल ओमेंस के बीचों बीच फंस गया था, उसको रास्ता ही नहीं नजर आता है कि कैसे इस दीवार से, सॉरी, कैसे इस कुएं से मैं अब बाहर निकलूँ, इस रूम से, इस फील्ड से, जिस फील्ड के अंदर मुझे हर, चाहे लेफ्ट राइट टू फ्रो, आगे दाएं बाएं, मुझे खाली एक ही चीज़ दिखता है, दैट्स इल ओमेन इन द फॉर्म ऑफ क्रू, in the form of crow, that's the symbol of death, doom, and ill omen, in the form of hemlock tree, that's again the symbol for this hemlock tree, hemlock tree, death, suicide जो हमने अभी देखा है उसका वो, and in the form, next in the form of dust, that's again the symbol for this death, doom, and bad omen। तो ये कहीं ना कहीं बेचारा पागल हुआ था इस चीज़ के अंदर, which would have ruined his remaining day as well। Now he was expecting would have ruined his remaining day as well। जो अब टाइम आने वाला है इस हाफ डे से इवनिंग तक फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक्सपेक्ट यही है, तो क्लियर मैसेज यही है यहाँ पे मिलता है कि डेफिनेटली वो भी मुझे वेस्ट होना ही होने वाला। बट द नेक्स्ट स्टेंजा एंड्स लीविंग द रीडर इन थॉट्स अबाउट द वर्स्ट which might occur।
soon as the poet has encountered with so many bad omens. तो इसी के साथ साथ one important thing worth noticing here worth noticing here is that the whole poem is written in a single sentence. Though the sentence ends in the fourth line, the sentence has now not ended with in which not ended which indicates the continuity of mood. अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात है. One important thing worth noticing here is that the whole poem is written in a single sentence. अगरची हालांकि अगरची मतलब कि ये यहाँ पे एक ही सेंटेंस में हम इसको जब हमने स्ट्रक्चर इस पोएम का पढ़ा है, नो मैटर ये एक ही सेंटेंस में लिखा गया है ऊपर से नीचे तक की 8 लाइन्स को. दो द सेंटेंस एंड्स इन द फोर्थ लाइन, द सेंटेंस हैड नॉट एंडेड विच इंडिकेट्स नॉट एंडेड विच इंडिकेट्स द कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे फोर्थ लाइन पे सेंटेंस खत्म होता है, इसीलिए यहाँ पे उसने फुल टास भी डाला है, सॉरी फुल स्टॉप भी डाला है यहाँ पे. तो इसी के साथ साथ तो ये एक्चुअली ना मुझे क्लास में आदत हुआ ही, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ फुल टास के फुल स्टॉप के बदले फुल स्टॉप उनको हंसाने के लिए. तो कहीं ना कोई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि डाइवर्ट होते हैं टॉपिक से, एंड दैट्स वाई मैं ये डिलिबरेटली यूज़ करता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे भी मुझे ये हाँ मैंने यूटिलाइज़ किया है फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मूड ख़त्म होता है इन चारों लाइन के आगे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई होप है, एक ब्लसफुल कुछ ना कुछ है. नाउ अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे. दिस इज अगेन द टेक्स्ट जो यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने येलो कलर के बीच कलर से. Has given my heart a chance of mood and savored some part of a day I had rued. Rude means held in regret. Stanza second में हम पढ़ेंगे. In the previous stanza we had guessed that something bad will happen in the final stanza too. जैसे आपने अभी आपने सुना होगा कि मैंने आपको क्या बोला कि जब इंसान की शुरुआत सुबह मॉर्निंग से ही ख़राब होती है, इंसान को अब वो पहुंच गया है बिल्कुल डे के बीचों बीच मिडल ऑफ द डे में, तो कुछ टाइम लिया है अब ये हिज थिंकिंग हिज पॉन्डरिंग अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंस सिंस अर्ली मॉर्निंग टिल द मिडल ऑफ द डे. अब उसको यही लगता है कि मैंने कहाँ पे गलत किया है, कुछ समझ नहीं आता है, समझने की कोशिश करता है कि कहाँ से मैं भटका रास्ते से, क्या मुझे करना था, कैसे ये हुआ है. एंड अल्टीमेटली ही मेक्स अप हिज माइंड एंड रीच द कंक्लूजन दैट मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ ये हुआ क्या है. कि लेकिन एक्सपेक्ट ये भी होता है साथ साथ जो आगे हाफ डे आने वाला है फ्रॉम आफ्टरनून टू इवनिंग तक, तो ये भी कहीं ना कहीं ज़ाया ही होगा. इसीलिए यहाँ पे भी इसने बात बोली है इन द प्रीवियस. तो यहाँ हम देखो कि वी हैव गेस्ड दैट समथिंग बैड विल हैपन इन द फाइनल स्टेंजा. तो यहाँ जो हाफ पार्ट अभी हमने पढ़ा ही नहीं पोएम का, एक्सपेक्ट एक रीडर करता है यही, तो आगे भी मुझे यही बैड ओमेंस, इल ओमेंस, डेथ, डूम, ट्रेजिक कॉन्सेप्ट्स का, लेमेंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, नेगेटिविटी का, पेसिमिस्टिक अप्रोच का यही शायद देखने को मिलेगा. लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे इसी एक इसीलिए एक मैसेज भेजी थी ओपन, only to utilize the negative things, only to find out the positive ways and approach. But all the three things which are the signs of ill omens have rather a good effect on the poet. लेकिन जो भी हमने ऊपर देखा है, जिन चीज़ों की खासियत थी यही थी जो लोग कंसीडर करते थे खाली किस इस बैड ओमेंस जो साइंस थे, सिंबल्स थे, इल ओमेंस हैव रादर अ गुड इफेक्ट. यहाँ पे अब देखो कि तो पॉइंट्स पे हैव अ गुड कैसे उसने देखेंगे. द पॉइंट से दैट द क्रू द डस्ट ऑफ स्नो एंड द हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन a change of mood to his heart. लेकिन इन नेगेटिव अप्रोचेस के साथ साथ ना पॉइंट रियलाइजेस दैट इन चीज़ों की बदौलत से ही, इन सिंबल्स ऑफ डेथ, इल ओमेन, बैड लक, इन चीज़ों की बदौलत से ही एक उनने एक गुड इफेक्ट मेरे दिमाग पे डाला है, मेरे हार्ट पे डाला है. क्यों? एंड द हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन अ चेंज ऑफ मूड ऑफ हिज हार्ट. तो दैट्स वाई इसने हैज़ गिवन माई हार्ट ए चांस. माई हार्ट these things give a change of mood to my heart. तो इस यहाँ पे इन चीज़ों के साथ साथ ironically the poet feels that good when the dust of snow which is good lightweighted falls on him and he feels that some part of the day which was wasted was saved. He is feeling good now. अब देखो वहाँ पे जब वो नीचे बैठता है उस ट्री के नीचे, हेमलॉक जो कवर होता है पूरे स्नो से, उसी के साथ साथ वहाँ पे क्रो भी था. क्रो ने जब शुक किया है वहाँ पे उस ब्रांच को,
ऑटोमेटिकली। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, वहाँ से स्नो पड़ गया इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। यहाँ पे इसीलिए उसने यूज़ किया डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, दे फेल ऑन द पॉइंट, ऑन द शोल्डर्स, ऑन द हेड ऑफ द पॉइंट। तो इसी के जब वो नीचे पड़ गया था, जो इतना लाइट था, पॉइंट ने उस चीज़ को देखा, दैट completely gives a change of mood to his heart according to the point। उस पढ़ने से ही एक क्ल्यू दिया है मेरे, नो मैटर ऊपर किसने उस चीज को भेजा है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट ने, एक नेगेटिव सिंबल ने, इन द फॉर्म ऑफ क्रू। उसका कलर भी ब्लैक है, ब्लैक कलर वी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू व्हेन वी स्टार्ट टू mourn the death, when we start to lament the death of near and dear ones। तो आयरॉनिकली यहाँ पे आप देखोगे द poet feels good। Why he feels good? When the dust of snow, which the quite lightweight, falls on him, and he feels that some part of the day which was wasted was he। इसीलिए उसने he is feeling good now and saved some part of a day I had rued। तो जो मैंने अभी तक टाइम निकाला है, सुबह से लेके अभी तक, मैंने खाली इस चीज़ को देखा, मैंने क्या कुछ पाया, मेरे हाथ में कुछ हासिल नहीं हुआ, एंड दैट्स वाई आई हैड रूड। मैंने इस चीज़ को रिग्रेट किया है, मुझे क्या करना था लेकिन क्या मैंने किया, और क्या मुझे करना था लेकिन क्या मैंने नहीं किया। अल्टीमेटली मेरे हाथ में क्या है, सुबह से अभी तक, मिडल ऑफ द डे तक कुछ नहीं। दैट्स वाई ही वॉज लेमेंटिंग द लॉस, दैट्स वाई ही वॉज लेमेंटिंग। तो इसने बोला है कि मैंने इसको चीज़ को रिग्रेट किया है, लेकिन साथ साथ आयरॉनिकली मतलब कि यहाँ पे अगर कोई कुछ बोलता है, उसका मीनिंग समथिंग डिफरेंट होता है, ठीक है ना। कभी कभार एक इंसान को प्रॉब्लम होती है किसी इंसान के साथ, क्लासमेट में, अगर हम देख स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास में भी देखेंगे कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या नॉर्मल आप क्लासमेट्स होते हैं, तो कभी किसी के साथ, एक क्लासमेट के साथ कुछ तू मैं होता है कि साथ में, फिर हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हमें इच्छा फिर से होती है कि हम जल्दी फिर से वापस एक दूसरे के साथ बात करेंगे। बट प्रेजेंट मोमेंट में, करंट में हम क्या करते हैं, उसके साथ बात नहीं करते हैं। ना वो स्टार्ट्स, वो पास जब आते हैं, हम बाहर जाते हैं, वो बाहर मिलता है, कहीं मिलता है, डोरमेट्री में मिलता है, हाउस में मिलता है, रास्ते में मिलता है, एकेडमिक ब्लॉक में मिलता है, तो यहाँ वहाँ। तो हम क्या करते हैं, जब भी वो नज़दीक आता है, हम उसके पास आन करते हैं कुछ कमेंट्स, ना उसकी तरफ हम देखते हैं, ना कहीं, या कोई उसके साथ होता है कोई फ्रेंड, या मेरे साथ ही कोई फ्रेंड होता है कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन किसके बारे में, असल में हम उसी इंसान के बारे में। हमने यहाँ पे कोई बात बोली, लेकिन उस बात को कोई अपोजिट मीनिंग होता है, दैट्स आयरॉनिक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर से नेगेटिविटी थी। Ironically, the poet feels good when the dust of the snow, which is quite lightweight, falls on him and feels that some part of the day which was wasted was saved. He is feeling good now। तो अब उसको लगता है कि नहीं, जो यहाँ पे हाफ डे है, एक क्ल्यू आया है, एक हिंट दिया है इसी ने, जो फॉलिंग ऑफ द स्नो, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर से पड़े इसके शोल्डर पे, हेड पे, इसको लगा कि इसी के साथ साथ उस स्नो डस्ट पार्टिकल्स की, डस्ट ऑफ स्नो जो ऊपर पड़ा है, उस हेमलॉक ट्री से, उस पॉइजनस ट्री से, उस नेगेटिव ट्री से, किसने उसको शुक किया, अगेन स्क्रू ने। उस क्रू ने, वहां पे भी एक क्रू खुद भी एक सिंबल था इल ओमेन का, बैड का, क्योंकि उसका कलर भी एक लेमेंटिंग कलर था। तो साथ साथ उसने क्या मैसेज वहां से भेजे हैं, कौन से पार्टिकल्स भेजे हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल डस्ट। जो एक डस्ट नीचे भेजो, उस डस्ट का भी स्मॉल एक सिंबल था, एसेंस थी नेगेटिविटी, लेकिन उसी के साथ साथ वो भी इसने भेजा है। लेकिन इट चेंजेस, इट्स कंप्लीट। या जब हमने पॉइंट इस चीज़ को देखा है कि कैसे लाइट स्नो मेरे ऊपर पड़ता है, ऊपर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे उसको कुछ स्माइल आया। तो इसी पढ़ने से ही उसका मूड बिल्कुल चेंज हुआ है कि ना ही रियलाइजेस, जो मेरा हाफ डे फिर से बर्बाद होने वाला था, फ्रॉम मिडल ऑफ द डे, आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक, कहीं ना कहीं वो शो क्या बच गया। एंड अल्टीमेटली वो उठ जाता है वहाँ से। अब उसने उस ट्रैक को पकड़ा है, उस पॉजिटिव वे को फॉरवर्ड किया है, अप्रोच किया है कि जो उसको करना था सुबह से। इसने बोला इस स्नो पड़ने, डस्ट ऑफ स्नो जो पड़ गया ऊपर, इसी ने मुझे एक क्लीव दिया है, इसी ने मुझे एक फिर से वापस लाया है उस इंटेंशन के ऊपर, जो इंटेंशन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से लॉस हुआ था। जिस इंटेंशन के बारे में, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था सुबह से अभी तक, लेकिन आई वॉज लेमेंटिंग, मैं उस चीज़ को कभी, मतलब कि अभी तक सुबह से मतलब
आफ्टरनून तक कभी लिया ही नहीं वापस अपनी लाइफ में। तो अब वही दिमाग में वापस आ गया है, लेकिन किस चीज़ ने आया, किस चीज़ से आया? इस नेगेटिविटी ने। कहाँ से? इस नेगेटिविटी से ही मुझे वो पॉजिटिव अप्रोच का वापस आ गया है। दैट्स वाई दिस वॉज द फाइनल मैसेज एंड दिस इज द ब्रिलियंट मैसेज, क्योंकि यहाँ पे इस पोइम का अपने ऊपर ही देखा है, तो वहाँ पे कैसे इस चीज़ ने उसको, मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्टस लिखा है ऊपर ऊपर इसके द मैसेज ऑफ द रीडर्स टू his message to the readers about finding something positive in their negative things. यहाँ पे hemlock tree one, crow second and third one dust, तीनों की तीनों चीज सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी है, सिंबल्स ऑफ बैड ओमेंस है, सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी है, सिंबल्स ऑफ इल ओमेंस है, बैड लक है। लेकिन इन नेगेटिविटी से ही इसको एक पॉजिटिव साइन मिला है इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ द स्नो, जो ऊपर फॉल हुआ है इसकी शोल्डर्स और हेड पे। तो इसी के साथ साथ इस पढ़ने से ही, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने से ही इस हार्ट में एक क्या चेंज मूड हुआ है कि नाउ ही स्टार्ट्स हिज यूजुअल वर्क, जो वो अक्सर करता था। द poem thus gives us the message that one should never become hopeless and sorrowful when he faces a problem. तो यहाँ पे देखो एक बेहतरीन क्रक्स मैसेज है, एक मोरल मैसेज है किसका? इस पोएम का। यहाँ पे वन शुड नेवर एवर बी होपलेस, कोई नहीं। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ गुड एज वेल एज बैड। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ जिक्र किया है वन ऑफ द ब्रिलियंट ओड्स रिटन बाय जॉन कीट्स, अगेन द रोमांटिक पोइट, यंग जनरेशन को बिलोंग करता था रोमांटिक एरा में। ब्रिलियंट, एट द एज ऑफ 18 उसने यूज़ किया है, लिखना स्टार्ट किया है पोइट्री के अंदर, इस लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। लेकिन साथ साथ अगर देखूंगे कि एट द एज ऑफ 20, जॉन कीट्स की जिक्र अभी आपके साथ मैंने की लास्ट टाइम भी, हम जब हम कुछ पोइम कर रहे थे डील, वहाँ पे देखा कि हमने, उसने एक ओड लिखी है, ओड ऑन मेलनकॉली, लगभग यही नाम है उसका, ओड टू मेलनकॉली और ओड ऑन मेलनकॉली। यू जस्ट चेक दैट आउट फ्रॉम गूगल। तो उस चीज़ को गूगल करो, वहाँ पे उसका नाम देखोगे। उसमें वो लिखता है कि अबाउट गुड एंड अबाउट द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए मैन। कहते हैं ना वो, दिस गुड एंड बैड are the two sides of the same coin. If there is a good, there is a bad. If there is a bad, there is a good. कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन कीट्स, वो बोलते हैं अगर दुनिया में अच्छाई है वो बुराई की वजह से ही है। अगर साइमल्टेनियसली बुराई दुनिया में है तो वो अच्छाई की वजह से, कहीं ना कहीं अच्छा ही नहीं एक बर्थ दिया है, किसको जन्म दिया है इस गुडनेस को। तो साइमल्टेनियसली इसी गुडनेस की वजह से ही, इस गुडनेस ने ही एक बर्थ दिया यहाँ पे बैडनेस को। सो हम लोगों को इस चीज़ के इन चीज़ों को देखने से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा अप्रोच यही होना चाहिए। वन शुड नेवर एवर बिकम होपलेस एंड sorrowful. One should never ever detach or keep himself away from the realistic perspectives of the life, because these are the realistic approaches of the life. Life is made up of these two beautiful components. One is the goodness and the other is the badness. तो यहाँ पे यही एक मैसेज देना चाहता है कौन? Robert Frost. That's why he was celebrated in America for his noon approach. That's the realistic approach. He depicts the life as it is. He depicts the life also within the realistic boundary, within the frontiers of the realistic. That's why he has given the peaceful message to his readers, to the readers of the universe, that one should never become hopeless and sorrowful when he faces a problem. No matter, this problem is the part and parcel of your life. जब आप एक प्रॉब्लम में होते हो, जब आप कुछ कहीं ना कहीं, जब इंसान कहते हैं ना, वो गलती ही एक इंसान को ना वापस ट्रैक पे लाती है, एक अच्छाई पे लाती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि द आथर वॉज कंप्लीटली होपलेस, ही वॉज डेस्परेट, ही वॉज हैविंग नो साइन व्हाट टू डू एंड मत यहाँ से अब मुझे कहाँ जाना है। इट्स ओनली द नेगेटिव अप्रोच, इट्स ओनली द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड विच गिव्स हिम द क्लू, which gives him the new clue and new approach while he starts his daily routine as usual, जो वो करता था काम पे। And a person can get relief and inspiration even in the worst experience. Again a moral message, again a beautiful experience after having a close cup of
this particular poem written by just within 8 lines written by this brilliant and my beloved and best poet Robert Lee Frost. A person can get relief and inspiration even the worst. A person can get relief. यहाँ पे देखो सुबह से आफ्टरनून तक बिल्कुल ही was lamenting, he was in loss, he was in bad luck. उसका मूड बिल्कुल ख़राब हुआ था. क्यों? मुझे जो करना था सुबह से मैंने वो किया ही नहीं. पता नहीं वो कैसे हुआ मेरे साथ, ये ऊपर वाले की मर्जी थी. लेकिन आप देखो कि यहाँ पे इसी ने द पर्सन कैन गेट रिलीफ एंड इंस्पायरेशन इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस. कभी कभार लाइफ में दिस इज द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द लाइफ. कभी इन रियलिस्टिक अप्रोच से, कभी इस असलियत से भागना नहीं अपने लाइफ से, लेकिन इंसान ऐसे स्टेबल करो क्रिएट अपने आप को, ताकि दिमाग यही बनाओ, जस्ट मेक योर माइंड सेट अप only to face this सिचुएशन. क्योंकि अगर आप इस टाइम इस चीज़ को सिचुएशन नहीं करोगे तो आप पूरी लाइफ के अंदर इस चीज़ को कभी फेस करने की कोशिश भी नहीं करोगे. दैट्स वाई इट्स बेटर. That's why he has given a beautiful message. One should never ever become hopeless, sorrowful when he faces a problem, because this problem is the part and parcel of your life. कभी इसी आप देखोगे इसी दुनिया में कभी हमें रेनफॉल भी मिलती है, कभी स्नोफॉल भी मिलती है, और कभी हमें यहाँ पे इसी दुनिया के अंदर, उसी फील्ड के अंदर, उसी घर के उस कोर्टयार्ड के अंदर, जिस कोर्टयार्ड में हम फील किया है, जिस कोर्टयार्ड में हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस किया है, कोर्टयार्ड में बैठ के हम देखते हैं, इसी कोर्टयार्ड में हमने उस सनलाइट को भी फील किया है, सनलाइट को भी एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट किया है. तो इसी कोर्टयार्ड के अंदर हमने क्या रेनफॉल और स्नोफॉल को भी एक्सपीरियंस किए हैं. बिकॉज these are the two sides of the same coin. These are the two sides of your same life. These are the two sides of the same world. So हम लोगों को भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें डट के वहाँ बैठना चाहिए, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, only to get the positive things even from the negative or the worst experience. That's why he has completed his this short poem. यहाँ पे a person can get relief and inspiration even in the worst experience. Worst experience उसको लगा कि यही कि सुबह से मेरा ज़ाया दिन हुआ. लेकिन एक देखो मामूली सी क्रू ने ऊपर शुक किया है किसको, उस ब्रांच से क्या पड़ा है, डस्ट ऑफ स्नो. उस डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ने ही एक मूड उसका चेंज किया है, एक हिंट दिया है उसको, एक क्ल्यू दिया है उसको. उस फॉलिंग जब उसने स्नो डस्ट उसको देखा है कि इसके दिमाग में वही आया जो मिस हुआ था इसके दिमाग से, एंड ही स्टार्ट्स हिज डे. तो अब वो प्रोसीड होता है कि अल्टीमेटली उसने एक फरियाद दिलाया है ऊपर अपने रीडर्स को. उसने बोला कि चलो ठीक है, फिर भी मुझे जिस चीज़ का उम्मीद थी हाफ डे ही ज़ाया हुआ, लेकिन अभी तक मेरा विश्वास यही था, एक्सपेक्टेड था. जैसे मेरे सुबह से लेके अभी तक ये ज़ाया हुआ, ये यहाँ से अब इस मिडल ऑफ द आफ्टरनून से ही भी इवनिंग तक मेरा दिन पूरा ख़राब होगा. लेकिन इसी डस्ट ऑफ स्नोफ्लैक्स ने जो वहाँ पे फॉल हुए थे क्रू की वजह से, शुकिंग जो उसने शुक किया था वहाँ पे हेमलॉक ट्री को, तो उसी ने मुझे एक बेहतरीन किया यहाँ पे. This actually ultimately I just wanted to conclude this poem here. The short poem written by Robert Frost, it throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. यहाँ पे देखो कि कितना healing power था. इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कैसे हम नेगेटिविटी से ही एक पॉजिटिव अप्रोच को निकाल सकते हैं. यहाँ पे फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग that can't be cured by nature. The author was experiencing one such day when a cruise movement near a hemlock tree dusted snow upon him. तो इसी जब वो ऊपर से नीचे तक पड़ गया तो उसके साथ साथ उसका मूड भी बिल्कुल चेंज हुआ कि उसी ने उसका वो हाफ डे अकॉर्डिंग टू पॉइंट वहाँ पे उसको फिर से मिला. यहाँ पे ये ख़त्म हुआ. होप आपको अब पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट मिला होगा इस पोएम के बारे में. बिल्कुल ही नीचे छोटी सी पोएम है, लेकिन मैंने उसको इसीलिए डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके साथ रखा. मुझे लगा कि पेन डाउन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्लास वर्क की, क्यों ना आपके साथ यहाँ पे मुलाकात करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस यूट्यूब चैनल. तो होप यू ऑल आर अवेयर नाउ अबाउट
the perspectives about the content context of this particular poem, short poem written by Robert Frost. अब हम इसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कुछ डिवाइसेस देखेंगे, कुछ टूल्स देखेंगे. मैंने हमेशा बोला कि लिटरेरी डिवाइसेस को हम इसमें थोड़ा आप देखेंगे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस को उसने यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इन ऑर्डर टू शो और डिपिक्ट the realistic perspective and picture of this particular poem before the readers. तो यहाँ पे literary devices लास्ट टाइम भी एक मैंने आपके साथ इस चीज़ के बारे में बहुत डिस्कस किया है कि लिटरेरी डिवाइस क्या होता है. यू जस्ट काउंट कि जैसे एक आर्मी पर्सनल पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास एक वेपन होता है ओनली टू डिफेंड देम सेल्फ, कहाँ पे बॉर्डर्स पे किसी भी सिचुएशन पे टू डिफेंड. एक हथियार होता है उनके हाथ में, एक वेपन होता है उनके हाथ में टू डिफेंड द कंट्री एंड टू डिफेंड देयर ओन पीपल फ्रॉम द एनिमीज. तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक पोइम को पढ़ने के लिए, एक पोइम को जानने के लिए, एक पोइम के वो कोर कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए, अ पोइट इज यूटिलाइजिंग द लिटरेरी टूल्स इन द फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीड्स. तो कैसे उसने फिगर ऑफ स्पीड्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ इलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, एनाफोरा जो हम देखेंगे, इन्वर्जन में देखेंगे, एसोनेंस देखेंगे, कॉन्सोनेंस में देखेंगे, इंजैपमेंट में देखेंगे कि कैसे उसने यूटिलाइज किए हैं. कि इनको हम जल्दी 2-3 मिनट में अब बस हम क्लोज ही करने वाले हैं. कि लेकिन इससे पहले अगर आपको ये पोइम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट. तो अब देखो यहाँ पे भी लिटरेरी डिवाइसेस को हम यूटिलाइज करेंगे. राइम स्कीम आप देखेंगे कि ए बी इसको हमने ऊपर भी आपके साथ डिस्कस किया है. नेक्स्ट इसी के अंदर इसने एक और लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है, दैट्स एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हम क्या होता है कि एट द occurrence ऑफ सेम लेटर और साउंड. यहाँ पे देखो लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ जिक्र किया है, वीडियोस पे आप लोगों के साथ बार बार इस चीज़ को जिक्र किया है. क्योंकि जब आप एक पोइम को यूटिलाइज करते हैं, जब आप पोइम को डील करते हैं कि इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू नो अबाउट द to know about the meaning, the context of these literary devices or tools. तो यहाँ पे देख the occurrence of same letter or sound. यहाँ पे उसने word नहीं बोला है, यहाँ पे उसने बोला है खाली occurrence of same sound, same sound or letter. एक लेटर हमें देखना है, लेटर अल्फाबेट, और साथ साथ एक साउंड देखना है, ना कि एक वर्ड देखना है. एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स द इंस्टेंस ऑफ इलिट्रेशन और एज फॉलो. अगर हम देखेंगे इसी के अंदर हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट. अब देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इस चीज़ के बारे में देखो कि ये सेकंड स्टंजा के अंदर से है, हैज गिवन माई हार्ट ए चांस. ऊपर हम देखा ना, हैज गिवन माई हार्ट. यहाँ पे कौन सा साउंड हुआ क्रिएट, हर साउंड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. एंड सेव्ड सम पार्ट. तो यहाँ पे एस साउंड को भी इसने यूटिलाइज किया है. यहाँ पे भी एस साउंड है, सेव्ड वन वर्ड है, और नेक्स्ट आप देखेंगे कि सम नेक्स्ट वर्ड है. इसीलिए उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इसने बोला द occurrence ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स दैट साउंड एस एंड हर साउंड. इसके अंदर हम देखेंगे. नीचे हम देखेंगे एक और लिटरेरी डिवाइस का यूज यहाँ पे किया है किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दैट्स इन्वर्जन. व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट क्रिएट रिदम, this poeticalization is called inversion. In sentence first inversion can be seen. अब देखो यहाँ पे in sentence stanza first inversion can be seen. आप देखो कि इसने यहाँ पे शायद यूटिलाइज नहीं किया है इस चीज़, द प्रोमिनेंस ऑफ इन्वर्जन. इसमें क्या होता है कि द क्रू डाउन, शुक डाउन. आप देखो यहाँ पे भी शुक, आप देखोगे शुक के बदले शेक के बदले इसने शुक यूज किया है. कि क्यों किया है यूज इसने, ओनली टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन द राइम स्कीम, टू मेंटेन द राइम स्कीम एंड रिदम स्कीम ऑफ द पोइम. एंड दैट्स वाई ही इज डेलिबरेटली मेकिंग. जैसे आपने लास्ट टाइम भी 8th क्लास में एक पोइम है, 8th क्लास में एक पोइम है आपकी डक एंड द कंगारू. वहाँ पे एक डिजीज़ होती है रोमैटिज्म, रोमैट्स. तो वहाँ पे आप देखो कि अगर आप खोलोगे इसका पेज, उसने उस डिजीज़ को लास्ट लाइंस के बीच में ना उसको ब्रेक डाउन किया है वर्ड. ओनली क्यों ब्रेक डाउन किया है, जब हम उस चीज़ को डिक्शनरी में ढूंढते हैं वहाँ पे वो वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं. क्यों नहीं मिलते हैं कि द पोएट डिलिबरेटली मेक्स यूज ऑफ that letters, that sound, only in order to create
in order to create the rhythm scheme and rhyme scheme, in order to maintain the pattern and the structure of the poem, and that's why he's utilizing the inversion. तो यहाँ पे भी आप देखो कि शेक के बदले उसने शुक यूज़ किया है only to maintain the यहाँ पे मीटर एंड इसका वो क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉइंट. एसोनेंस एक नेक्स्ट एक यहाँ पे उसने यूज़ किया, द प्रोमिनेंस ऑफ द वोवेल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस. लास्ट टाइम भी ये बोला है कि ये एक एलिट्रेशन का पार्ट है. एलिट्रेशन ऊपर हमने देखा है कि इसके दो सब टाइप्स हैं. इस एलिट्रेशन को हम जब हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों के अंदर, एलिट्रेशन होता है यहाँ पे, इसको हम करते हैं चेंज. एक तो है कॉन्सोनेंस और दूसरा है एसोनेंस. कॉन्सोनेंस जब रिपीटेडली आपको मिलेंगे वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक एस एच, जो हमने अभी देखा कि किसके अंदर. लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एसोनेंस कौन सा है. एसोनेंस मीन्स जहाँ पे आपको एसोनेंस, जहाँ पे आपको खाली वोवेल साउंड्स मिलेंगे. अब देखो एसोन, द प्रोमिनेंस ऑफ द वोवेल साउंड throughout a line is called assonance. In line stanzas, in stanza first line to shook down on me, o sound is prominent. यहाँ पे again repeat हुआ है कौन सा sound, कौन सा letter, o sound, o shook, o down, o again on me, o sound यहाँ पे इसने. तो लास्ट में हम देखेंगे कि फाइनली उसने इंजैपमेंट यूज़ किया है. व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूजिंग ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, इट्स कॉल्ड इंजैपमेंट. इट हैज़ बीन यूज्ड थ्रू आउट द पॉइंट. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है कि कैसे उसने इस चीज़ का यूटिलाइज किया है. देखो यहाँ पे, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ऊपर से नीचे तक एक ही लाइन है ये. क्यों एक ही लाइन है? कि क्योंकि बीच में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है. जब एक लाइन कंटिन्यू होगी, एक ही लाइन कंटिन्यू होगी, वन लाइन में, टू लाइन में, थ्री लाइन में, फोर लाइन में, फाइव लाइन में, या दो तीन लाइन्स में, या दो ही लाइन में, या टू एंड हाफ लाइन में, उसी को हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट. तो यहाँ पे हो गई है ख़त्म. होप यू ऑल आर aware now. You hope you understand this beautiful poem written by रॉबर्ट ली. तो फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो. होप यू अंडरस्टैंड दिस. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.